हाँ भाई क्या हाल है भैया वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ askganjiswag और कल ही हमने एक एपिसोड शूट की थी अभी वो रिलीज हो रही है एंड एज इट्स बीइंग रिलीज्ड मैं अगली बना रहा हूँ मेरा स्केड्यूल बड़ा एराटिक है कभी मैं हफ्तों अवेलेबल नहीं होता कभी साथ ही साथ दो दो दिन में अवेलेबल हो जाता हूँ कल वाली जो थी हमने सिर्फ वी ओनली टुक 3 क्वेश्चंस इट वाज मच इजियर टू डू घंटे के अंदर हमने उसको रैप अप किया तो दैट्स आई थिंक रोजाना मैं 1 घंटा तो निकाल ही सकता हूँ इसके लिए शुड वी डू दैट या फिर ये कि लंबी लंबी एपिसोड्स और फार अपार्ट तो लेट मी नो आई विल सी मेरी कोशिश होती है जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़े उतनी ज्यादा लोग केटर हो सके before I start, if you want to support, you can do that on patreon.com/ganjiswag. Their support helps us supporting this channel because as you see, there's like no product placement or integration because इसको मैंने बिल्कुल सादा खुशबू रखा हुआ है इस वाले चैनल को so that's where you guys help out. चले आज के सवालात की तरफ चलते हैं. Salam Junaid bhai, hope you're well. I apologize for a very detailed email, but please bear with me. I know you've never disclosed the name of the country stated, but in this case, I also request you not to disclose the name of my degree. Okay, ठीक है. My name is ABC. I'm 22. I live in somewhere in Europe and currently doing a arts में कुछ कर रही हूँ. ठीक है. I'm in the second year of my course and I'm pursuing my passion for the said industry जिसमें वो है. I started talking to this guy back in 2019 over Instagram. अच्छा, by the way, इस email का नाम है Online Dating / Friends and Mental Health. So I started talking to this guy back in 2019 over Instagram who lives in North America. As time passed, we became good friends and started FaceTiming on Snapchat. However, I started catching feelings for him since we talked a lot and I realized he's always there for me. We never expressed our feeling for each other, but it was so obvious that the feelings were mutual. अच्छा ये वाला प्यार भी बड़ा मजे का होता है ना जिसमें आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते बट लाइक यू नो दैट इट्स देयर एंड यू नो द अदर पर्सन इज देयर एज वेल उसका भी एक अलग ही मजा है मजे हैं. However, our way of talking sometimes made me confused on whether we're good friends or are we dating. This confusion was on my mind for a very long time. A whole year has passed and we were just having a discussion on what people in general go through when they're dating and the impact of breakups. During this conversation, I said to him, I have never dated anyone. And to this, he replied, yo, what is this girl trying to say? In a very emotional tone, which I never understood. After this discussion, he started distancing himself from me. We still text every day, but he stopped calling and started replying after hours. His behavior made me realize that maybe all this time we were dating and his feelings were hurt when I said I have never dated anyone. Because I was confused about whether we're just friends or dating. The everyday texts made me think that everything was cool. However, he stopped calling, but his feelings, care, and concern for me still showed in his texts. This texting kept on going for another 6 months, but no more calls from him as he kept on saying, I'm busy. This made me overthink a lot and impacted my mental health as we have good intentions for each other, but he seems distant. I sent him a paragraph stating when our feelings for each other are mutual, which is so obvious, then why are you being so distant? I also considered marriage in this paragraph. Oh wow. I mean like आप अभी मिले नहीं and you're already talking about marriage. ठीक है. To which he replied, I would express my feelings for you, but a lot is going on in my life right now, so it's not the ideal situation. ये लड़के का reply. I understood this and I supported him in this difficult times for another 6 months. अच्छा 2 साल हो गए इनको. I told him I booked a flight to his country, North America, since he was going through a lot of problems in his life and I was concerned about him. We became so close over the past year as we opened up to each other a lot, discussing each other's life problems. However, on the new year of 2022, yani abhi December 31st, he told me that all this time he was dating a girl and they broke up. Wow! I was hurt a lot by hearing this since I have always been there for him and his feelings for me always showed in his texts too. I don't understand one thing. How could he be having feelings for me and texting me a lot while still dating another girl? As we have become so close over the past year and opened up to each other a lot. I told him how deeply I was hurt when he was dating during this whole time. To end this, I told him I do not want to talk anymore as it is impacting my mental health. But I'm here as a friend. No, that's a wrong move. You don't become friends with your kidnappers. ये सीन ही नहीं होता in times of need.
He called me and said all this happened because he couldn't handle long distance with me, and he didn't tell me he was dating because he didn't want to lose me. उसको उधर भी मजे चाहिए थे, इधर भी चाहिए था. तो आते हैं इस पे भी. Since we're very close and he always had the idea of expressing his feelings for me when we physically meet. Moreover, he said, why don't you just look forward to your trip and we'll talk it over? Nah, man, nah, fam, don't take that flight. My trip to that country is now 5 weeks away and we are both looking forward to this time. However, he still doesn't call and says I'm always busy. Okay. यानी अभी आपने मुझे ईमेल भेजी जिसको 6 दिन होगा अभी है टाइम. Junaid bhai, I don't understand what to do as our intentions for each other are good as we always want to see each other happy. I'm hurt that all this time he was dating when I have been loyal to him. The confusion of us being just friends or dating since the past 2 years was still there. 1 minute he says he couldn't do long distance, and the next minute he's like, I can't lose you. If he had feelings for me, if we were just friends, then why date another girl? I'm assuming he just wanted someone to be physically there, but he still cares about me. My mental health is messed up. Please state your view. Thank you for taking our time to read this. So basically, एक साहिबा हैं, यूरोप में रहती हैं. इनकी किसी से सलाम दुआ हुई, वो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं. 1 साल इन्होंने बातचीत की, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई. फिर इन्होंने बोला कि आई हैव नेवर डेटेड एनीवन, तो वो शायद हर्ट हुए. फिर उन्होंने कॉल करना छोड़ दिया अगले 6 महीने, और फिर उसके अगले 6 महीने और बातचीत हुई. फिर जब इन्होंने बोला कि मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने, तो उसने कहा जी मैं तो किसी और को डेट कर रहा हूँ. So nothing surprising. You would be surprised to know, and not just you जिन्होंने क्वेश्चन किया है, बट women in general. मर्द जो है ना, मर्द के दिल के टुकड़े नहीं होते. मर्द का एक दिल ना बैरियर टाउन होता है, उसमें बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं, बहुत सारे, और वो सबसे इक्वली प्यार करते हैं. ऐसा ही है भाई, बिल्कुल बराबर का प्यार करते हैं. बीवी से भी वैसे ही प्यार, गर्लफ्रेंड से भी वैसे, उसी लेवल का. ये है हमें क्वालिटी. तो वो आप जो थे ना, आप उनके लिए एक इमोशनल क्रच थी, जिनके पास वो आके पूरे दिन का हाल बयान किया करते थे. इंसान को ना चाहिए होता है, उसकी एक सोशल नीड है कि कोई उसका दिन के बारे में सुने. खवातीन को ज्यादा होती है, लेकिन कुछ मर्द होते हैं उनको भी ये उनकी नीड होती है कि जी कोई हमसे बातें करे, घंटों घंटों बातें करे. फिर उन्होंने आपको कॉल करना छोड़ दी. उसकी वजह ये है कि वो दूसरी खातून आ गई थी, वो उनकी कॉलिंग का टाइम था. और फिर वो जाहिर पकड़ भी सकती थी कि भाई तुम्हारा लास्ट सीन ये क्यों आ रहा है, या मैं तुम्हें अगर स्नैपचैट पे कॉल कर रही हूँ तो कॉल हैंग, वो बिजी कैसे जा रही है, तो आपको कैसे कॉल करते. तो अगली बार दुम से सही पकड़ा हुआ होगा, तो उन्होंने आपको कॉल ही करना छोड़ दी. तो आपको बस नीड टू नो बेसिस पे रखा हुआ था कि इतना, वो कहते हैं ना, किसी को इतना दो बस कि वो जिंदा रह सके. तो आपको वो इतनी खुराक दी या इतनी ऑक्सीजन दी कि आप जिंदा रह सके, ताकि इमोशनल जो भी उनकी नीड है वो आपसे पूरी हो, फिजिकल नीड वहां से पूरी हो रही हो. व्हाटएवर, आई एम जस्ट, दिस इज हाउ मोस्ट मेन ऑपरेट. तो आपको भी लटका के रखा है, आपको भी टाइम आया, मगर अपने काम उधर. अगर वो आपके इतने अच्छे दोस्त हैं और आपसे जिंदगी की हर चीज शेयर की, तो इतनी बड़ी चीज कैसे छुपा ली? That means a lot of those times when he said he was busy, he was probably with that girl. आपको आसरा दिया है, आपको प्यार हो रहा है, और आपको बोल रहा है कि मैं बिजी हूँ, there's so much going on in my life. Yes, that woman was so much going on in my life. कहीं वो बैठे होंगे, कहीं आइसक्रीम खा रहे होंगे, आपका मैसेज आया होगा, बोला होगा अभी मैं बिजी हूँ, एक काम पे आया हूँ, काम वहां चल रहा होगा, एक ही चम्मच से दोनों आइसक्रीम खा रहे होंगे. ऐसे ही है भाई. अबे मर्द बड़े है, ऐसे ही है. तो ये जो आप फ्लाइट लेके जा रही है ना, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो फ्लाइट चेंज करें, नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा सा नीचे आ जाएं, और वहां जाके किसी बीच पे रिलैक्स करें, चिल करें, और वो उसकी मेमोरी को ना एक कागज पे लिखें, और उस कागज को उस बीच की मिट्टी में दफन करके वापस आ जाएं, एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. Because this guy is obviously two-timing you, and he has no intention to be with you. He has no intention to be serious with you. Had that been the case, देखिए long distance बहुत से लोग चला लेते हैं, जिन्होंने चलानी होती है वो चला लेते हैं. If he can't do long distance, he should be clear. But वही ना मसला, मर्द खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, ना खुद कुछ बता रहे होते, ना अगली को कुछ बता रहे होते, लटका के एक जिंदा लाश लटकाई हुई होती है. ये बहुत करते हैं लड़के, क्लैरिटी नहीं देते, ना खुद क्लियर नहीं होते. आपको क्या क्लैरिटी देंगे? खुद पता नहीं होता उनको करना क्या है जिंदगी में. So this is nothing but toxic, and this is going to further deteriorate your mental health. Allah na kare. Should you choose to continue with this shenanigan, there is no hope, or clearly he is not even apologetic. I mean, you know, आपको शायद अगर उसमें थोड़ी सी वो शर्म हया होती तो
रो धो के बोल देता कि मुझसे गलती हो गई, या ये कि मुझे जरूरत पड़ी, मेरी फिजिकल नीड्स हैं, व्हाटएवर जो भी है, कुछ तो बोलता, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया। यू शुडंट डू दैट बेटा, ऐसे नहीं करते। तो व्हाई आप मतलब अब आपको देखें, assume this way कि like your partner is your plate and that plate only belongs to you, उसमें से जो भी स्टेक है वो पूरा आपका है, लेफ्ट ओवर नहीं खाना होता कि जी वहां से जो बचेगा तो फिर वो जो अटेंशन की प्लेट है सारी तो वहां पे जा रही है, वो सैलड हो गया या स्टेक हो कुछ भी हो गया, और जो बच रहा है वो आपको मिल रहा है लेफ्ट ओवर, फ्रिज वाला खाना। फ्रिज वाला खाना खाना है नहीं भाई, पूरा यू डिजर्व द होल मील। तो डोंट बी द किसी की टू टाइमिंग क्यों बननी है आप भाई। At the end of the day beta, your self respect is going to be everything that determines who you are and that defines who you are. So if you're just going to give away your self respect, put in a plate like that, तो अगला तो किक ही मारेगा ना उस पे। तो आप क्यों उस तरह रख के देंगे कि वो उसकी जिंदगी में बड़े मसले थे, चले मैं जाके सॉल्व, वो क्यों नहीं आके आपके मसले सॉल्व कर सकता? उधर से भी जहाज आता है, यूरोप की फ्लाइटें खुल गई हैं, क्यों नहीं आ सकता? वो आना नहीं चाहता, उसको सही लगा हुआ है जी, इसको एक अवेलेबल वहां पर है और एक वहां पे वो रो रही है, जब जरूरत होगी वो भी आ जाएगी, उसको कोई भेज देगा। या प्लान ही ऐसा किया होगा कि जब वो जा रही होगी तो आपको बुला ले। आई डोंट नो मैन, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, बट दिस इज हाउ मेन ऑपरेट। तो डोंट बी अ विक्टिम ऑफ समवन्स बोर्डम एंड समवन्स कंफ्यूजन। ये तो मैं अक्सर खैर मर्दों को कहता हूँ, क्योंकि यू नो कुछ केसेस में खवातीन बड़ी कंफ्यूज होती है, उनको पता नहीं होता, बस उन्होंने पाला होता है एक फ्रेंड, वो क्लियर नहीं कर रही थी भाई हम फ्रेंड है, हम क्या है किधर जा रहे हैं, बस नहीं वो पाला हुआ होता है। तो वो चूंकि वो कंफ्यूज होती हैं, तो मैं लाइक देयर हैव बीन इंस्टेंसेस विद माय फ्रेंड्स हु वर विक्टिम ऑफ दैट कंफ्यूजन। पता नहीं करना क्या है, बस तुम भी मेरे साथ रहो, लेकिन कुछ कुछ हमने, हमारा कोई फ्यूचर भी नहीं है, बट लाइक फिर भी यू नो, तो डोंट बी दैट पर्सन। तो किसी का लेफ्ट ओवर नहीं खाना होता, फ्लाइट पहली फुर्सत में चेंज करें और किसी और जगह घुमा दें। यू आर बीइंग प्लेड। अब देखें ना, जो आपसे रोजाना बात करके 6-8 महीने पुरानी रिलेशनशिप छुपा सकता है, वो आपके साथ क्या क्या नहीं छुपा सकता हो। ये तो वो चीजें जो उसने एडमिट की है, क्या पता और भी क्या कुछ हो। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स अ साइन बिग इनफ। और अल्लाह मियां ना साइंस ही दिखाता है, अल्लाह मियां उतर के नहीं आता। तो इंसान ही है जिसको अकल नहीं आ रही होती, तो ये साइंस ही हमें दिखाए जाते हैं। एंड दैट्स अ pretty obvious sign that the guy is clearly using you as an option. You don't want to be an option man, you want to be the main girl. My way or the highway, यही होता है। मर्द भी जो सुन रहे हैं मैं उनको भी यही कहूंगा, डोंट बी अ फकिंग ऑप्शन फॉर एनीवन मैन, कि अच्छा जब ये नहीं होगा तो मैं इससे कर लूंगा। क्यों भाई, मैं क्या सड़क पे पड़ा हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? दफा हो यहाँ से। So don't be a leftover and don't be this person. So it's gonna hurt. It's gonna hurt really bad because you've invested 2 years of your early 20s. तो मगर ये कि यार ये जो पहले पहले प्यार होते हैं ना, ये होते ही लात है। It's a kick on your butt to make you realize that the world is really really harsh and it's not hunky dory like any Hollywood movie or any rom-com. That's not how life works, man. Life is full of such people. This is what it is. This is what you gotta deal with, man. और ये अभी आप, you're gonna go through a heartbreak, you're gonna be vulnerable, there's gonna be another person, oh let me talk to you, क्या हुआ, and then you're gonna share a few things, you'll be like, oh that's so bad, अच्छा मुझसे बात करो, ये वो, and then bam, he's gonna use you. ये होता है, this is what happens, man. So like put your guard up, like really really up, and don't be an option for anyone. I would highly, as a brother, if you think my advice has any value, this is my advice for you. This is, and like not just mine, comments में जो लोग सुन रहे हैं, आप क्या मशवरा देंगे? ठीक है, don't be influenced by Junaid bhai, what Junaid bhai said. आप अपना ओपिनियन दें, what do you guys think? 100% लोग यही बोलेंगे कि भाई वो टू टाइमिंग कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। So no, save that money और कोई वेकेशन पे चली जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें। Thank you. Ajay, next one. It says divorced mom looking for a personal advice. Assalamu alaikum. I really enjoy listening to your podcast and the advice you gave out. I'm reaching out about a personal issue. My separation and subsequent divorce was about 4 years ago. My marriage was not a happy one. It was an arranged marriage, but alhamdulillah, my parents and siblings supported me when I decided to call it quits. Even though I'm quite liberal in my thoughts and really don't care what others think of me, my parents do not want the world to know about my divorce because of the typical log kya kahenge और लोग सवाल किया करेंगे
और हमारी हिम्मत नहीं है जवाब देने की. They also say that since I live abroad and I'm not in touch with relatives, I don't need to bring this up. So I keep this part of my private life private and don't mention or allude to it on Facebook. My work and children keep me really busy and I enjoy the friendships I have made, but recently I've started to feel worried about the future. I worry about being on my own and alone when my kids are grown and busy with their own lives. My friends are all married and they lead their lives with their husbands and children, and it can be difficult to do some social activities with them. I started looking at Muslim dating apps just to see what's out there because my mom has already mentioned many times about the dangers of bringing a man into my children's life. The risks she mentions are something I also worry about. The apps are very disheartening. I was aware of this after hearing from other people, but wasn't sure that it would be this bad. Men on there seem to be dishonest and not very sincere. I'm constantly worrying about getting scammed. I haven't been on it for too long because anytime I start a conversation with someone, they either ghost me within a day or two, or their conversations don't seem to be sincere. I apologize for this very long email. No, it's not a long email, but I guess I'm looking for some insight and thoughts from someone who can give me an outsider perspective, if that makes sense. I'm happy to provide further details should you need them. Thank you and look forward to hearing from you. Okay, so ये email थी. साहिबा है, 3 बच्चों की mother है. She's recently divorced और फैमिली ने कहा है कि चूंकि तुम मुझसे बाहर रहती हो तो कोई जरूरत नहीं किसी को बताने की, इसको हश हश रखो, छुपा के रखो, हम क्या लोगों को जवाब देंगे वगैरह वगैरह. हालांकि फैमिली ने सपोर्ट बड़ा किया ड्यूरिंग द सेपरेशन पीरियड, मगर बस ये रिक्वेस्ट की कि छुपा के रखो. और फिर अब जाहिर उनको ये वक्त के साथ साथ ख्याल आ रहा है कि अभी बच्चे छोटे हैं, लेकिन जब वो बड़े होंगे they'll get busy in their own lives and I'll be very alone. So she started looking at Muslim dating apps and it has been very very disappointing. So first of all, there's nothing wrong in feeling what you felt, क्योंकि बड़ा concern रहता है लोगों का. No one wants to live alone and it's nothing but it's in the very biological design that men or human beings they need each other, and like as couples they need each other. अब जिनका नहीं है तो मैं I don't want them to feel bad or anything, but it's like ये इंसान की need होती है, basic need होती है, not just physical but emotional, mostly emotional. Physical dry out after a while. It's emotional. So that's a legit concern. और वो यही वाली बात है, बच्चे बड़े होते हैं और बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं और वो अपनी दुनिया में लग जाते हैं. जाहिर है उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं, उनकी अपनी लाइफ होती है, उनकी अपनी गोल्स होते हैं, मिशन होते हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव अदर पीपल अलोंग. वो फिर फील करते हैं कि यार वी आर बीइंग बर्डन्ड बाय प्रेजेंस और लाइक अगर इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा. फॉर एग्जांपल देयर आर सम मदर्स हु आर लाइक सिंगल मदर्स, खासतौर पे जाहिर है हु हैड नथिंग बट देयर चिल्ड्रन, तो वो जरा उनको ये फेयर ज्यादा होता है अलोन होने का. सो समटाइम्स दे ओवरडू इन टर्म्स ऑफ अटैचमेंट एंड दे टेंड टू ओवरडू देयर वेलकम. तो वो फिर बच्चे जो ना चिड़चिड़ हो जाते हैं, हमें वो भी नहीं करना होता, ठीक है ना. सो वी हैव टू मेंटेन अ वेरी वेरी हेल्दी बैलेंस जहाँ पे बच्चे ऑकवर्ड ना फील करें, where they don't feel कि your presence is way too much in their lives and like you prying, because आजकल के बच्चों को नहीं पसंद हमें भी नहीं था, वहां पर चॉइस नहीं थी, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत सेल्फ अवेयर है, इंटरनेट के दौर के बच्चे हैं, तो इनको इनकी प्राइवेसी बड़ी पसंद है और होनी भी चाहिए, जरूरी भी है. बट आपका वो कंसर्न बिल्कुल सही है. टू लुक एट डेटिंग एप्स, oh well, I can go on and on for hours about how men, especially desi men, operate on these dating apps. Like, I have friends who have been pretty active on these apps. A simple Facebook search turns out जो साहब कह रहे थे जी मैं 32 साल का हूँ, वो वहां पे 48 के और 3 बच्चों के बाप निकलते हैं. मतलब मजे करने आए हुए लोग एप्स में. They're not sincere, they lie. और फिर especially in your case because you're living abroad, so you might tend to come across a lot of those men who would be seeking a PR, who would be seeking a nationality वाला चक्कर. तो वो sincerity वहां से भी मिलना बहुत मुश्किल है. It's very difficult to because some people are really good at hiding at what they really really want out of you. They'll show you love, they'll show you care, they'll show you everything, but deep down they might have their own agendas. और ऐसी
20,000 मिसालें आपने भी सुनी होगी, जिस मुल्क में आप है वहाँ पे भी बड़े इस तरह के स्कैम्स हो जाते हैं, एंड सो डज इन यूरोप वगैरह में होते रहते हैं. There's nothing wrong in seeking love. There's nothing wrong in seeking partnership. There's absolutely nothing wrong in seeking being cared for, because that's a very, very, very human need. मुझे ना for the longest time, because if I share my own personal example, I don't tend to share my personal details on the internet, but I think this channel is very, very safe. Or ये थोड़ा side whether it's not very public. Because I got married and then it instantly became a long distance marriage. So in my head, I was not married. मतलब like in the sense कि मैंने वो life feel ही नहीं की थी कभी, right? क्योंकि मैं independent रहता था, दुबई में भी independent रहा, फिर शादी के बाद भी वो शादी वाली फील नहीं मिली जो कि होनी चाहिए ना, कि आप घर गए हो, there is someone there, so there was no one, right? And obviously it was very difficult to travel back then. I had only started YouTube full time, and obviously she has her own business, and उसकी भी 10,000 चीजें, तो मुझे ना वो क्लिक हुआ ही नहीं. And I think COVID was a blessing in disguise, because when I went there eventually, वो मेरा पहला ट्रिप था इंग्लैंड का, और फिर जब लॉकडाउन हो गया, and then I had to live for 6 months, तो मेरे लिए वो एक बड़ा different phase था. Suddenly there's a child and there's a woman and like other children as well, तो वो एक it was too much to absorb. तो वो मुझे ये लगता था अपने ज़हन में, in my head of heads, मुझे ये लगता था कि I think I can live alone, like क्योंकि मैं हमेशा रहा हूँ अकेला. I think I can manage myself. मुझे सिर्फ ऑर्डर ही तो करना है, खाना बनाना आता नहीं है, बाहर से खा लूंगा, जिंदगी भर बाहर से खाए. Not advising all these unhealthy opinions. I'm just saying कि मुझे लगता था कि like I don't really need anyone, right? Even though I had someone, but I don't really need anyone. Until I had COVID last year. That shit made me realize. Acha, when I say this, I don't mean I need a nurse, but like you need someone who can look after you. And by that again, I don't mean a nurse, I don't mean a maid. But like माँ का concern अलग होता है, आपके partner का concern अलग होता है, right? तो एक वो कोविड वाले टाइम में मुझे ये चीज बहुत महसूस हुई. हालांकि कोविड में तो फिर दूर ही रहना था, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है आपको आइसोलेट करना होता है. And secondly, when I had my back pain, a back issue, that got me in bed for like a good while, and I was really, really struggling. उसमें भी मुझे ना ये फील हुआ, क्योंकि ना it's not like कि अगर so my wife was unfortunately not in the country, और travel restrictions थी, तो वो आ नहीं सकती थी. ज़ाहिर है बच्चों के schools हैं, this and that, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं. So when I say this, I don't mean कि मुझे बस कोई आयोडेक्स लगाने वाली चाहिए थी. No, कभी कभी किसी का होना ही जो है ना आधा पेन चला जाता है. ऐसा ही है भाई, बीवी को देख के आधा दर्द दूर हो जाता है. थके आ रहे घर जाते हो, बीवी को देख के, अबे कुदरत में अल्लाह ताला ने डाली, यही कुदरत में डाला है भाई. इंसान कहते ना हमने पेयर्स में बनाया है. So like बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से, बहुत फर्क पड़ता है. तो मुझे ये चीज वाकई रियलाइज हुई कि नहीं यार, ये मेरी सोच ना, ये जो ब्रो वाली सोच है कि नहीं भाई चिलिंग कर लेंगे अकेले, हमें बस एक गद्दा और प्ले स्टेशन ही तो चाहिए, ऐसा होता नहीं है. वो एक वक्त तक ये सोच अच्छी लगती है when you're in your 20s, but not when you're in your late 30s. Perhaps my lifestyle changed a lot in the past 3-4 years, मतलब money wise अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं अब वो चूंकि एक पूरी जिंदगी उसमें गुजरी है, डेस्परेशन में गुजरी है ऑफ बेसिक थिंग्स मैन, तो अब वो ना इनर चाइल्ड थोड़ा एक्टिवेट हुआ है कि मुझे खुल के ट्रैवल भी करना है, मुझे खुल के ये भी करना है. अब मैं वो वाली चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि फैमिली भी साथ साथ, आई मीन आई डू माई ड्यू डिलिजेंस देयर, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट वो एक चीज होती है ना कि मैंने थोड़ा सा ब्रोस के साथ ट्रैवल करना है और ये करना है वो करना है, वो मैं मेरा ज़हन अभी भी एडमिट नहीं कर पा रहा. खैर, पॉइंट ऑफ दिस होल एक्सरसाइज वाज कि इन दो सिचुएशंस में मुझे it immensely changed my mind कि you can live alone, but you don't really want to, man. You really need someone. So don't mean to make you or anyone else feel bad who don't have someone right now. I'm just saying your concern is legitimate right now, because बच्चे बड़े होंगे, they'll have their own lives, they'll move out, उनकी अपनी शादियां होंगी, अपने किसी और मुल्क में नौकरी लग जाएगी.
स्पाउस ही जो है ना आपकी एक सर्टन हद तक, मतलब देखें पेरेंट्स आपकी एक सर्टन हद तक नीड्स पूरी कर सकते हैं, सिबलिंग्स एक हद तक उनकी अपनी लाइफ होती है, but it's the partner with whom you can be absolutely vulnerable and absolutely um, open about a lot of things. So you really need someone. तो आपकी ये सोचना गलत बिल्कुल भी नहीं है. It's just the circumstances are not in your favor. The dating apps are absolute shit. और ये हमारे यहाँ जो भी, नॉट जस्ट हमारे यहाँ, वो ग्लोबली कैजुअल सेक्स जो बढ़ गया है, उसकी उसकी वजह यही है बिकॉज देयर इज सो मच अवेलेबिलिटी नाउ व्हिच हैज मेड men and to some extent women non-committal. People don't want to commit anymore because there is so much available. पहले क्या होता था, I mean like in my lifetime हमें तैयार होके थर्सडे नाइट को बरस्ती जाना पड़ता था. बरस्ती बार इज इन दुबई, इट्स लाइक अ बीच बार, तो वेरी चिलिंग प्लेस. तो वहां जाके फिर हमें जरा एक्शन वैक्शन करने होते थे, थोड़ा डांस वांस की कोशिश करनी थी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट समवन, राइट. यू हैड टू डू सो मच, लाइक तैयार हो, नहा धो के तैयार होना है, कपड़े पहनने, परफ्यूम लगाना है, गाड़ी में बैठना है, ऑल द वे जाना है JBR, वहां पे गाड़ी पार्क करनी है, वैले को देनी है, एंट्री करानी है घुस के, और फिर रिवॉर्ड भी आपको अच्छा लगता था कि यार आई डिड सो मच एंड देन लाइक आई मेट समवन एंड वी वेंट आउट ऑन अ डेट और व्हाटएवर. नाउ पजामे में लेट के ऊपर आपके लेस के चिप्स गिरे हुए हैं, जस्ट स्वाइपिंग लेफ्ट एंड राइट. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आपको कोई एफर्ट ही नहीं लगाना है, बस यूं करना है, यूं करना है, उसके बाद थोड़ी सी चैट करनी है, देन यू गो आउट फॉर अ कॉफी. तो बिकॉज द परसूट इज सो लेजी, तो वो उसकी जो वर्थ है ना वो भी कम हो गई. You get what I'm saying? And because वो कम हो गई है, so you don't value that person anymore, and because you can get jiggy with that person potentially, and you do on a lot of occasions, and then when another person, फिर आप बोलते हो भाई ये स्वाइप किया, ये आ गई, ये स्वाइप किया, ये आ गई. There's just so much availability, so you don't want to commit to anyone. और अभी मैं पिछले दिनों में एक सुन रहा था कि there's like I'm sorry if it's going off topic, but it's not really off topic. Women want to hug you in the orgasm because it's like a certain, like I'm so sorry, मैं इसको बिल्कुल याद नहीं आ पा रहा, मैंने वो एक टिकटॉक पे देखा था. Because they release some sort of chemicals in which they want to bond, but मर्दों का उल्टा होता है. They're like, I don't want to deal with you anymore. Da, da, da. And because it's happening so much, which is why men are not. I'm sorry. I'm getting it all wrong. So misinformation ज़्यादा नुकसानदेह होती है. So let's just cut it out here. Never mind. So yeah, dating apps का ये scene चल रहा है कि men are absolutely not sincere, and maybe women to some extent. I don't know. I haven't been on the apps for so long. वो आना ही शुरू हुई थी, and then I found my wife not on the app, but like otherwise. So I really didn't really get to explore the apps as much. So उसमें यही है, apps का scene यही है. The post Tinder world is very very different. The way men and women are behaving is very different. The way they engage is very different because there is just so much supply out there. Like क्या करेंगे आप? You can dress up or dress down and like be at your absolute self, and then like the other person don't even have to like change from his PJs and just reject you based on whatever, right? So yeah, it's very sad. But like I would still encourage you to meet people. वो आपने लिखा कि you avoid going to a lot of activities because वो जाहिर है वो couples वाले events होते हैं, तो वो charade खेल रहे हैं या picture पता नहीं क्या क्या गेम होते हैं वो खेल रहे हैं. So obviously you need a partner and you probably feel left out. या फिर couples if they're going to a bar or if they're going to a restaurant or whatever, so probably feel left out because वो couples में आते हैं and then you probably feel that you're by yourself. I would still encourage you to go out, meet people, see what they're about. Don't rely on apps. Rely on human interaction more because it's more real. Reactions are real. आप सामने नजर आ रहा होता है कि आप भी like you're a mother of 3, so आप भी you can call bullshit right away, right? अब chat में वो नजर नहीं आ रहा, बंदा सोच के जवाब दे रहा है, अच्छे अच्छे लफ्ज ढूंढ रहा है, synonyms ढूंढ रहा है, beautiful नहीं कह रहा, ravishing कह रहा है, तो आपको और लग रहा है ओ अच्छा वो क्या आप गेम खेल रहा है boy.
सामने का interaction is different, man. वो सब चीजें सामने होती हैं. So I would still encourage you to go out, meet people, and see where life takes you. It's important. I'm not saying कि जिंदगी नहीं गुजर सकती, वैसे गुजर सकती है. I mean, like people live like that. They come to terms with that sometimes. कि ठीक है, नहीं है तो नहीं है. मगर I mean, imbalance तो है ही ना. They're not enough. But equal number तो नहीं है ना men and women का. There's always going to be imbalance. So there will always be people who might not find someone. That's perfectly fine. But at least you tried. So trying and failing is better than failing to try. And I wish you luck. I wish you all the best. And I wish you all success, prayers, and good vibes. But ये कि just go out, meet people, meet your friends, go to events, be more social, like enjoy life. You're just आपने एज अच्छा नहीं मेंशन की करने को कहा तो मैं नहीं कर रहा. You have a whole life ahead of you, man. Like तो बहुत है टाइम अभी. चिलिंग करें, एंजॉय करें. अपना ख्याल रखें. And if you need any more, I'm always an email away. All right, thank you. All right, next one. Why are we proud to be racist? Loving a mixed race guy, but family doesn't agree. So I'm Junaid bhai. Please don't mention my country name. Okay, I'm 26-year-old female living in a country, which is a very good country. From the last 5.5 years in completing my studies in IT and doing part-time job to finance myself, plus pay all my tuition fees and sometimes sending money home. Wow. During these years, I have interacted with a lot of people of different background, nations all over the world, especially from Pakistan. I did have some good experiences and more bad experiences, but I learned a lot through these experiences. So I met this guy last year, 2020, December. We are from the same city in Pakistan. Speak same language, same culture, somehow had same struggles. He has completed his master's degree here and working in a good company for the last 2.5 years. He was straightforward and asked me in the beginning that he's looking for someone for marriage in case I'm interested. If yes, we can talk to each other and check the compatibility and then involve our parents whenever I want. I saw it as a positive thing as I was 25 and giving it a try. We started to talk about likes and dislikes. We kept talking for 4 to 5 months, had meeting, traveled to different cities without rushing anything, without being intimate. First time in my life, I felt being heard, seen, respected without someone violating my boundaries, without being pressurized. I felt like he's the right one. But the problem is my family doesn't want to accept him because of race. I told my sister about him and she admitted there is nothing wrong in him but the caste. They think he's from the lower caste. What the fuck are people still talking about these things? And people will laugh at my family that they sent their daughter for studies and she married to a lower caste. They are afraid of people. According to them, I will find someone else. There is no scarcity of people in my life. But that's not the case, Junaid bhai. I think you know better than me. It's very rare to find a person who can have a healthy relationship with you. As I'm the youngest one in family, they think I'm still a child, immature, and I can't decide what is right and what is wrong. They think I'm still young, and why am I running after marriage? I should focus on studies and career. I've been convincing them for the past 4 months, but facing emotional blackmailing, guilt trips, manipulation, that I don't care about them. Or they say Istakhara didn't come out positive. They are wasting time in naming a name of investigation. His mom is ready to bring official proposal, but my family isn't ready to talk. Oh man, so ये क्या मसला है यार. आप एक इतने अच्छे मुल्क में रहती हैं, अच्छा पढ़ रही हैं, कमा रही हैं, वो भी कमा रहा है, आप खुश हैं, कंपैटिबिलिटी चेक कर ली, ट्रैवल कर लिया. ट्रैवल बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब लोग इसमें डालेंगे शरिया कंप्लायंस. खैर, सबका अपना अपना. और you're feeling the it factor, that's very important man. ये नहीं होता. बहुत से लोग शादी कर लेते हैं फिर कहते हैं प्यार करना है हमने क्योंकि अब शादी कर ली है. तो उल्टा चलते हैं. हमारा मुल्क इसलिए उल्टा है और हर चीज में नीचे से है क्योंकि हम सोचते ही उल्टा है. हमारे जिंदगी का जो सबसे बड़ा डिसीजन है वो हम ही नहीं ले रहे होते, जो कि शादी है और तालीम. 2 चीजें मैंने बहुत बार ये बात बोली है, तीसरी बार बोल रहा हूँ. 2 चीजें डिटरमिन करती हैं आपकी लाइफ कहाँ जाएगी. एक आपकी तालीम डिटरमिन्स योर करियर डिटरमिन्स व्हाट यू वर्क एंड इफ इट सैटिस्फाइज यू एंड इट पेज योर बिल्स, यू आर हैप्पी. दूसरी चीज आपकी शादी. अच्छी जगह शादी की है, डोमेस्टिक लाइफ खुश है, सब खुश है. डोमेस्टिक लाइफ फक है, आप बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस हो, इलॉन मस्क हो, डिवोर्स हो जाएगी. ऐसा ही है भाई. घर में सुकून नहीं तो कहीं सुकून नहीं.
और हमारे पास 99% पाकिस्तानी के पास ये दोनों डिसीजन अपनी लाइफ के हैं ही नहीं। कोई और लेता है डिसीजन कि तूने पढ़ना क्या है और तूने ये ना किसको है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट ये दूसरे लोग डिसाइड करते हैं कि आपने ये तालीम लेनी है और इनके साथ सेक्स करना है। Who the fuck are you to decide my life? अब वो जैसा भी निकले या जैसी भी निकले, ये आपकी किस्मत है, क्योंकि अल्लाह ने लिख दी है। तो मतलब अल्लाह ने अकल तो दी नहीं थी, अल्लाह ने लिख दिया था कि तुमने ऐसे सफर करना है तो सफर कर लिया। ओ भाई निकलो इन चीजों से। ये कास्ट वास्ट में तो बड़ी हैरत हो रही है। ये तो है ईमेल भी पाकिस्तान से, इंडिया से होती समझ आता, वहां थोड़ा बहुत कास्ट का इशू ज्यादा है। सैडली हमारे यहाँ भी चल रहा है। ओ भाई कास्ट वास्ट कुछ नहीं होती, ये सब फजूल चीज है। वो कहते हैं ना, देयर इज दिस वेरी गुड कॉमेडियन, he says ये glorification of past is dead man's burden that you carry. Stop carrying it. मतलब just because what were the odds? So for example, let's say you're a Jat or you're a Chaudhry or you're a RI. इसमें आपका क्या कमाल है कि आप RI हैं? क्या कमाल है कि आपने यूं जब ऊपर से फरिश्ते ला रहे थे तो आप यूं करके सीधे हाथ घूम के आप शोरकोट में लैंड हुई थी तो आप RI बन गई, या उधर लैंड हुए तो आप ये बन गए। आपका क्या लेना देना? It's just a miracle that you happen to be born. So now you're superior because मैं यहाँ पैदा हूँ। अबे तू खुद से थोड़ी हुआ है पैदा। Like इतनी सी बात है, कास्ट सिस्टम फक हो जाएगा। इतनी सी बात है। If people understand कि आपका इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो हम सुपीरियर कैसे हो? सुपीरियर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि I am a superior YouTuber. I'm not claiming. मैं एक बात कह रहा हूँ, because I worked my ass off और मैंने ये करके बिल्ड किया तो मैं अब सुपीरियर हूँ। You become superior by doing something, not by being something automatically. कि ये I'm a proud Muslim. ओ भाई तू पैदा मुसलमान घर में हुआ है, तूने कोई पढ़ के थोड़ी चूज किया कि अब मैं मुसलमान बन रहा हूँ या मैं हिंदू बन रहा हूँ या मैं क्रिश्चियन या जू बन रहा हूँ। You know what I'm saying? आप पैदा हो गए उस घर में। हम सब इसलिए मुसलमान है बिकॉज हम पैदा मुसलमान घर में हो गए, राइट? असल मुस्लिम तो वो है जो पढ़ के कन्वर्ट होता है। ऐसे ही है भाई, जिसने पूरी स्टडी की, कंपैरेटिव किया, कंपैरेटिव एनालिसिस किया, सालों लगाए किताबें। हमने कौन सी किताब पढ़ी है? हमने एक पढ़ी है, वो भी समझ नहीं आई, किसी और लैंग्वेज में पढ़ ली। पढ़ना आती, समझ नहीं आती। खैर, सैड स्टेट ऑफ अफेयर। कास्ट वास ये भाई सब बकवास है। इफ यू आर कंपैटिबल एंड हैप्पी विद दैट पर्सन, दैट्स इट, बात खत्म भाई। अब मैं ये कोई, अब लोग बोलेंगे जी आप मशवरे दे रहे हैं लड़कियों को घर से भाग जाए, ये भाग जाए। नहीं, वो घर से नहीं भाग रही भाई। उन्होंने जो है ना इज्जत के दायरे में, देखो कह रही है हमने कोई इंटीमेसी नहीं की, ठीक है, और मतलब वी हैवंट बीन इंटीमेट, वी जस्ट ट्राइंग टू लर्न ईच अदर। और बंदा भी शरीफ है, जैसे शुरू में ही बोल दिया कि यार मैं सिर्फ इस पर्पस के लिए बात करना चाह रहा हूँ। सो इफ यू आर ऑन द सेम पेज ओनली देन विल गो आउट। शरीफ आदमी है यार, वरना जिस मुल्क में बैठा है वहां तो टिंडर यूं यूं करता रहे। और समझ रहे हैं आप? तो शरीफ लड़का देखना है, कास्ट वाला लड़का नहीं देखना। अच्छी फैमिली का हो, पढ़ा लिखा हो, मस्ट बी अ गुड प्रोवाइडर, अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी का हिस्सा बने, ये देखना होता है। जी जाट है बस, और कुछ नहीं है, जाट है। अबे डालूंगा मैं इसमें, कहां डालूं मैं इस जाट को? क्या करूं मैं इसका? अबे पागल लोग हैं यार, कसम से यार। 13th सेंचुरी बुलशिट वी डीलिंग विद यार। 2022 आ गया यार। तो फक, मेटावर्स की दुनिया, वो पड़ा हुआ ऑक्यूलस, ये पहन के अबे दुनिया ही चेंज कर दी लोगों ने, दुनिया ही बदल दी। रियल एस्टेट बिक रहा है मेटावर्स में। ये बैठ किया अभी तक कास्ट, हमारी कास्ट ये, तो हम ये, हम वो है। अबे तुम नहीं हो, यू हैपन टू बी दैट स्टूपिड एस। तो बहन आप वही करें जो आपको दिल को अच्छा लगे। आपका फर्ज था पेरेंट्स को बताना, आपने बताया। आप चाह रही थी कि उनकी फैमिली आए और तरीके से एक मामला हो। अगर आपकी फैमिली इन्हीं दकियानूसी चीजों में फंसी हुई है कि लोग क्या कहेंगे, तो भाड़ में डालें उन लोगों को जो आपकी अनहैप्पीनेस का जरिया बनेंगे। आपने रहना ही वहां नहीं है। जब आप इतने अच्छे मुल्क में हैं तो बेगम कह रहा हूं, सॉरी, तो बहन, सॉरी, तो बहन आपने उसावा भी ऐसा है, तो बहन आप उधर ही रहें, उधर ही निकाह पढ़ा लें। बड़ी अच्छी अच्छी मस्जिदें वहां, मैं बताता हूँ आपको एड्रेस जहां आप रहती हैं ना, मुझे पता है वहां पे अच्छे अच्छे इमाम मिल जाएंगे, बेहतरीन निकाह हो जाएगा। खल्ली वल्ली भाई शरीयत अलाउ करती है, भाई अलाउ करती है शरीयत की नहीं। फैसला किसने लेना है? लड़का लड़की ने लेना है, माँ बाप ने थोड़ी लेना। हाँ, इज्जत का तकाजा है कि आप उनसे पूछ ले, उनकी रजामंदी हो तो अच्छी बात है। हल्ली वल्ली करें भाई जहां आपको खुशी मिले। बंदा सही है, ओके है, आपने देख लिया उसकी
खाना पीना घूमना फिरना देख लिया, सब कुछ ओके है, ओके की रिपोर्ट है, कर ली वल्ली यार, छोड़े भाई ये कास्ट वास। और ये नहीं करना कि मैं आती हूँ घर वालों को बनाती हूँ, आप आई और ये दुपट्टा आएगा ऊपर, ये मंसूर बैठा हुआ, आजा भाई, ये शादी का कैमर आ गया, पता ही नहीं चलेगा आपके साथ हुआ क्या। और पासपोर्ट फॉरेन साइट पे बहुत लड़कियों के साथ ऐसे केस हुए, बहुत लड़कियों के साथ ऐसा ही है भाई। अबे आए मेरे दोस्त के एक दोस्त है, बड़े सालों से मुलाकात नहीं हुई, वो सो रहे थे अपने घर में, जुम्मे, उस जमाने में जुम्मे की छुट्टी होती थी, उसके अब्बू है बेटा जरा तैयार होकर नीचे आना मेहमान है, तो वो जुम्मा था तो शलवार कमीज इस्त्री वाला उसने पहना, नीचे आया तो मौलवी बेटा सब बैठे, क्या है जी आपका निकाह है अबे सो रहा था वो, पुलाव खा के सो रहा, जुम्मे के बाद पुलाव खाओ कैसी नींद आती है, ओए 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 चावल और मटन पुलाव खा के वो सो रहा था, कह रहा आ जाओ नीचे, असर का टाइम हो रहा था उस वक्त कि तुम्हारा निकाह है, तुम्हारी शादी हो रही तुम्हारी कजन से, हेंस कजन मैरिज होने तो हमें यहाँ पहुंचा दिया हमारे मुल्क को। तो भाई ये ना हो जाए आपके साथ, तो अपने आप को सिक्योर करना एंड लाइक पढ़ाई लिखाई करें, इतनी अच्छी आप फील्ड में, इतने अच्छे मुल्क में आप है, क्या इमेजिन द एक्सपोजर यू विल गेट, योर चिल्ड्रन विल गेट इन दैट कंट्री, इमेजिन ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट अवेट यू। ये जिस मुल्क में आप है ना, यहाँ एक गांव से मैं गुजरा था, मैंने बोला यार अल्लाह मुझे एक और लाइफ टाइम दे दे, मैं यहाँ रहूंगा, उफ क्या गांव था वो। खैर अल्ली वल्ली करे भाई, टेंशन ना ले। अच्छा जी, next one says working for a Pakistani, heading की जो है इतनी खतरनाक है। Dear sir, I hope this email finds you well. My name is ABC. I'm 21. I was born and raised in Dubai and moved to the UK a year ago. I studied law and graduated with an LLB. I've been working ever since I was 15, having had the privilege to work for companies like Netflix, Samsung, Huawei, Khalij Times and much more. क्या बात है, 21 में लौंडे ने क्या क्या किया। I have a strong work ethic and which I'm quite proud of. My problem started when I started working under a Pakistani lawyer in the UK. Oof, Allah Akbar. I'm pretty sure he suffered from bipolar disorder or something, as he would scream at me for doing the whole work. He told me. Once I'd stopped doing the work, he would scream at me again for not doing the work. The work drove me insane as it was not paid, and I had to travel 90 minutes each way daily on the tube to get there. I wasn't even asked if I would like to be compensated for my travels. I was exploited for work like this for a month. All the while, he kept telling me, please find work somewhere else. One Friday afternoon, I got a call to work in another firm as a legal interpreter, but the interviews would be a week long, and I required a week off from this work, which I was doing for free. I called him and informed the lawyer of the same, only for him to tell me, please don't bother coming back here to work ever again. I've been working ever since I was 15. I had enough to pay for my own driver's license and my first car in Dubai. I've worked with people from different nationalities and ethnicities. As you might know, the workforce in Dubai is quite diverse. My question is, why is that Pakistanis, especially in Europe, I'm not generalizing, just a majority, have a toxic attitude and have this mentality of crushing others' aspiration only to give themselves a slight benefit? I'm looking forward to a reply in your videos. Please take care, and I believe it will be helpful for others as well. I'm not really surprised, bro. ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होता है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, but sadly हमारे this is what my analysis about our people as well is कि जहाँ वैसे if you deal with the Pakistani, they're generally nice, very helpful people. बट जहां आप उनको थोड़ी सी पावर दे दो ना, जहां वो फील करे कि ही कैन बी सुपीरियर टू यू, दे विल बी टॉक्सिक राइट अवे। फॉर एग्जांपल, आप कैमरा लेके कहीं जाए कराची में और किसी सिक्योरिटी गार्ड वैसे आप ऐसी घुसे ना, तो शायद वो आपको रोके भी ना, या अगर आप गाड़ी लेके ऐसे जाए वो आपको शायद रोके भी ना। बट अगर आपने रोक के उससे पूछा ना कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, फॉर बोलेगा नहीं सर ये नहीं हो सकता, या क्या मैं शूट कर सकता हूँ, फौरन आंखें फेरेगा कि सर ये हो नहीं सकता, सबको इम्पोर्टेंस जताने का। ठीक है, हम एक बार एक जगह गए शूट करने, वहां पे एक साहब थे, बिकॉज उनको पता था कि ही इज द ओनली पावर देयर, फॉर नो रीजन हमारे कैमरे रोक लिए कि जी कैमरे नहीं जा सकते, सेंसिटिव मामला हैं आगे। हमारे फोन तो है, कह रहे फोन तो है, और हमने फिर फोन से ही वीडियोस बनाई, वीडियोस पूरी बन गई। बट द फैक्ट कि ही वाज सो बोर्ड
ही वांटेड टू एक्सरसाइज पावर, तो उसने फजूल में बस अननेसेसरीली कि जी कैमरे और ये ड्रोन आप यहाँ रखते हैं, तो बोला हमारे फोन में तो 4 कैमरे हैं, आईफोन में 3 है, ओप्पो में 4 है, ये कह ठीक है वो ले जाए, रखने तो असूलन आप फिर फोन भी रखे ना, नहीं फोन नहीं रख सकते। सो हमारा सामान रोका, हम इतनी दूर गए हुए थे शूट करने, अननेसेसरीली उन साहब ने हरकत की, एंड देन हुआ कुछ भी नहीं, हमने फिर भी शूट किया, शूट हो गया, सब कुछ हो गया, वो व्लॉग आप सबने देख भी लिया। सो जहां उनको थोड़ी सी पावर लगती है ना, मिलती है ना, दे टेंड टू बी वेरी एक्सप्लॉयटेटिव, क्योंकि वो खुद भी एक्सप्लॉइट हुए हुए आए हुए होते हैं, प्राइमरीली नॉट देयर फॉल्ट, बट दैट्स जस्ट द सिस्टम सैडली। अब वो आप जाहिर है किसी लीगल लॉ फर्म में थे, अब हमारे यहाँ देखें लोग तालीम ले लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना तालीम और तरबियत, 2 वर्ड यूज होते हैं ना हमेशा, हम लोग तालीम पे ही फोकस करते हैं, तरबियत हमारे यहाँ ना घर से मिलती है, घर वाले कहते हैं जी 20,000 हम फीस दे रहे हैं ना स्कूल की, वो करेंगे, वो कहते हैं जी हम तो खाली 6 घंटे की फीस लेते हैं, अब इनकी तरबियत भी हम करें, हम क्यों करें, माँ बाप करें जिनके पास ये 12 घंटे रहता है। तो दोनों ने ना बच्चों को वॉलीबॉल बनाया, तरबियत ना इधर से हो रही है ना उधर से हो रही है, फिर आपका एक आ जाता है, एक तरबियत का मेंबर होता है आपका, आपकी इबादत गाह, जहाँ आपको जिंदगी के बारे में गाइड किया जाना चाहिए कि जिंदगी में आपने कैसे चलना है। अब मैं लाइक बीइंग अ मुस्लिम हमेशा ये कहता हूँ कि नमाज इतनी अच्छी एक्सरसाइज है जो कि आपको एक आपका एक सोल फूड तो है ही है, लेकिन वो आपको दुनियादारी भी सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 5 वक्त नमाज पढ़नी है तो आपने वजू करना है, तो दैट मीन आपने साफ सुथरा रहना है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों में बॉडी ऑर्डर का कितना इशू है, और मैं ये किसी गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा या किसी अंडर प्रिविलेज की नहीं, अच्छे अच्छे लोगों की। हाइजीन का हमारा बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा दीन कहता है सफाई निस्फ ईमान है, ना हमारी सड़कें साफ ना हमारे जिस्म साफ, ठीक है। फिर जी नमाज आपको सिखाती है, जी नमाज 1 बजे होगी तो 1 बजे खड़ी हो जाएगी, वो किसी का वेट नहीं करेगी, ठीक है। कायदे आजम ने भी पहली ईद की नमाज पीछे खड़ी की थी, क्योंकि जो मौलाना थे उन्होंने बोला कायदे आजम होंगे नमाज तो टाइम पे। ये एक डॉक्यूमेंटेड वाकया, उनकी तस्वीर है चप्पलों में खड़े नमाज, ऐसा ही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हिस्टोरिक चीज है ये, थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। तो नमाज से करती है वक्त की पाबंदी, क्या हम वक्त के पाबंद हैं? हमारा सबसे बड़ा झूठ शादी के कार्ड होते हैं, खाना 9:30 बजे, अबे बारात 11:30 बजे आ रही होती है, खाना कैसे 9:30 बजे, ठीक है। वक्त हम नमाजें पूरी कर लेते हैं हम, मतलब आप किसी को भी फोन करें, तारिक जमील की आवाज आ रही है, धरने हो रहे हैं या जुलूस हो रहे हैं, मजहब पूरा हमने, मगर सीखा कुछ नहीं हमने, जिंदगी में कुछ अप्लाई नहीं किया, वक्त की पाबंदी नहीं है। फिर ये कि जो डिसिप्लिन से सफ बना के सीधा खड़ा होना है, वो डिसिप्लिन चप्पलों में नहीं होता, चप्पलें टेढ़ी मेढ़ी, बाहर गाड़ियां टेढ़ी मेढ़ी, मतलब कोई भी मस्जिद, आप रैंडम मस्जिद में जाए पाकिस्तान में नमाज के टाइम, जोहर की नमाज, असर की नमाज, उस वक्त बाहर ट्रैफिक जमा किया हुआ होता है, क्योंकि लोगों ने टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियां, फिर वो फ्रूट वाले भी वहीं खड़े हो जाते हैं, तितर बितर निजाम होता है। डिसिप्लिन जो हम अंदर एक सफ में यूं कंधे से कंधा मिला के करते हैं, बट वो हम जिंदगी में अप्लाई नहीं कर रहे, सो क्लियरली वी आर नॉट लर्निंग समथिंग। तो नमाज इतनी अच्छी तरबियत गाह हो सकती है, और मस्जिद इतनी अच्छी तरबियत गाह हो सकती है, मगर वो करते ही नहीं है। वो कहते हैं जी फलाना काफिर, तो ये काफिर, तो फ्रांस को जला दो, अभी फ्रांस से डील हुई है जी, सब मरीन की है, पता नहीं किस चीज की, इधर से हम फ्रांस जला रहे हैं। तो वो उन्होंने सिखाया था ना तरबियत, फिर थोड़ी वहां से हो रही थी कि भाई जिन लोगों ने गाड़ियां टेढ़ी खड़ी की उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, अगली बार वो सीधी खड़ी करके आता, मगर वो उनको पता है यार जिसने जो गाड़ी में आया उसी ने 1000 का नोट डालना है चंदे में, तो व्हेन जब उसका इंटरेस्ट कनेक्ट हो गया ना उस बंदे के साथ, तो उसको गाइड ही कभी नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऑफेंड हो गया तो फिर चंदा कौन देगा। यार बात कहाँ से कहाँ निकल रही है। सो तरबियत हम कहीं से भी नहीं सीखते, स्कूल हमें नहीं सिखाता, हमें दूसरी तालीम दर्सगाहें नहीं सिखाती, घर वाले नहीं सिखाते, सबने एक दूसरे पे जिम्मेदारी मार दी, बच्चा अपना मार देता दूसरे पे। जैसे हमारी फैमिली रेस्टोरेंट्स में जाती है, अब वो रेस्टोरेंट में आप भी जाते हो तो यू आर देयर फॉर अ गुड टाइम। हम लोग एक मिडिल क्लास मुल्क है, ज्यादातर बहुत कम होता है कि इंसान की जेब उसको इजाजत देती है कि वो अपने बीवी बच्चों को लेके सुकून से कहीं खाने पे जाए, कोई नान कबाब खाने चला जाए, कोई कढ़ाई खाने चला जाए, कोई निहारी खाने चला जाए, उनको वहां सुकून चाहिए होता है। एक तो जितना महंगा रेस्टोरेंट उतना खामोश होता है, तो जितना सस्ता होगा शोर उतना होगा। बंस रोड पे कड़ा 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 लगा हुआ है, सर में दर्द हो रहा है, वेटर शोर कर रहे हैं, भाग रहे हैं, नौरानी कबाब है भाई, ऐसे ही माहौल होता है, हबड़ दबड़ मची हुई होती है, हबड़ दबड़ मची हुई, मतलब जो आप एक प्लेजर के लिए आए,
वो आपको सोनिकली भी डिसप्लीजिंग है, खाना तो है ही डिसप्लीजिंग, वो तो आपका बेड़ा गर्क कर ही रहा है, मिर्च मसाले, ब्लड प्रेशर। सो तो वहां पे रेस्टोरेंट में अब हमने क्या देखा है, लोग आते हैं अपने बच्चे छोड़ देते हैं, भाड़ में जाए दूसरों को एक्सपीरियंस, मैं तो आराम से खाऊं खाना। माँ बाप अपना बैठे होते हैं, बच्चे इधर से भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, शोर कर रहे हैं, चमचे कांटे गिरा रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस खराब कर रहे हैं। तो पॉइंट भी कि हमने अपनी जिम्मेदारियां दूसरों, अपने बच्चे दूसरों पर डाल देते हैं। पैदा कर लेते हैं, पैदा किस लिए कर लेते हैं जी, कॉन्डम फट गया, या प्लान नहीं था, या सास को मुंह बंद करना था तो बच्चा हो गया। बच्चा पालना है इसलिए नहीं करते, पालेगा अल्लाह भी, हमने बस पैदा करके छोड़ देना, कपड़े पहनाने, स्कूल भेजना, वो तरबियत ही नहीं है। सो जहाँ इस लेवल की मिसमैनेजमेंट होगी बच्चों पे, और ये थ्रू आउट द कंट्री, क्या ये क्लास क्या वो क्लास, हर क्लास का ये हाल है, सबने अपने बच्चे पाल के फेंके हुए, छोड़े हुए, ठीक है, मोस्टली मेजोरिटी, नॉट जनरलाइजिंग, अच्छी फैमिलीज भी है, नॉट डिनाइंग दैट। तो भाई जब वो तरबियत ही नहीं आई, एम्पैथी नहीं आई, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी कमी एम्पैथी की है, किसी और के बारे में सोचना कि यार वो ना मेरी इस तरह गाड़ी खड़ी करने से ट्रैफिक बिला वजह जाम होगा, मैं थोड़ी सी साइड पे कर लेता हूँ, सवाल ही नहीं पैदा, पीपल डोंट थिंक। माय ओन फ्रेंड डिड दिस थिंग, उसने बीच रोड पे गाड़ी लगा दी एंड देन पीछे ट्रैफिक था और उसको फील ही नहीं हो रहा था कि उसने कुछ गलत किया है, वो अपना लगा हुआ कि हाँ हम लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में, वी वर गोइंग समवेयर एंड द वे उसने बीच में लगा दी एंड लाइक ही वाज चिलिंग, मिल रहा है हाथ पैर, मतलब हाथ मिला रहा है और क्या हाल है ये वो, चलो सामान डालो, खड़ा है ना आराम से, लाइक उसको ये फील ही नहीं हुआ कि उसकी वजह से पीछे पूरा गली जाम हो गई, ही डिडंट गिव अ फक। मैंने उसको पॉइंट आउट किया, आई कॉल्ड हिम आउट ऑन दैट बुलशिट, ही सेड हां ठीक है ये वो। तो बेसिक एम्पैथी नहीं है, तो जब वो एम्पैथी हमारे यहाँ किसी भी किस्म की नहीं आई, और जानवरों के लिए एम्पैथी नहीं है, तो वो फिर एक इंसान के लिए कैसे होगी। तो फिर वही पोजीशन ऑफ पावर है, लीगल कंपनी चला रहे हैं, लॉ फॉर्म होगी उनकी एक, आबिद एंड आबिद करके या शाहिद एंड शाहिद करके उन्होंने खोली होगी। आप आए होंगे, बोला उसको मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, ये 90 मिनट चल के भी आएगा, उसको मैं पूछूंगा भी नहीं, चाय भी नहीं पूछूंगा, और वही उन्होंने किया। तो यार जनरली ना हम लोग वेयर वेयर अनहैप्पी पीपल, ये अब देखो इंग्लैंड की बात कर रहे हो, इंग्लैंड में रह रहा है बेहतरीन माशरे में, लेकिन वहां भी उसने वही अपना सराउंडिंग वही पाकिस्तानी रखी होगी, वही अनहेल्दी टॉक्सिक एनवायरनमेंट वाला घर होगा, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स होंगी, अनहेल्दी फ्रेंडशिप्स होंगी, टीवी खोलता होगा, यार वाय आता होगा, साबिर शाकिर देखता होगा बैठ के, वो उसने इंग्लैंड को पिंड बनाया है, वो उन्होंने सोचा जेलम को वॉलपेपर चेंज किया, इंग्लैंड कर दिया, रहे वो जेलम में ही रहे मेंटली, ये वाले बहुत क्राउड है वहां यूके में, तो वो उनकी आनिया जानिया भी फिर वही होती, फिर एक्सप्लॉयटेशन। तो इट्स वेरी सैड, नॉट ऑल बट मोस्टली आर लाइक दैट, पैर की जूती समझते हैं, जहाज में बैठे तो जहाज बाप का, टिकट नहीं लिया जहाज खरीद लिया, एरोसिस से बदतमीजी से बात करना, कितनी बार आप देखते हैं दुबई की फ्लाइट में, इस्तांबुल की फ्लाइट में। सो मसला वो आदमी नहीं है, मसला हमें जनरली बचपन से चीजें सिखाई नहीं गई कि आपने किसी कैसे डील करना है, या किसी के साथ एम्पैथाइज करना है, या किसी के बारे में सोचना भी है, सवाल ही नहीं पैदा, अपना ही सोचना है। तो सब अपने अपने में लगे, हमारा ना एज अ नेशन कोई कलेक्टिव गोल ही नहीं है। तो पूछना यार पाकिस्तान का गोल क्या है, अपना गोल सबको पता है, बैरियर टाउन में कर लेना है, इमिग्रेशन लेनी है कनाडा की, शादी करनी है, फातिमा ताहिर को देखना है, यू नो सबकी इंडिविजुअल ख्वाहिशें पूरी है। कलेक्टिव एज अ नेशन क्या ख्वाहिश है जी, इंडिया तबाह करना है, कर ही नहीं सकते, इसराइल तबाह करना है, कर ही नहीं सकते, वो ना अजीब अजीब से नारे, फजूल के नारे कि ये करना है, अबे कैसे करना है, मुझे 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 स्ट्रैटेजी बताओ, मुझे स्ट्रैटेजी बताओ, जैसे इमिग्रेशन की स्ट्रैटेजी है ना कि तुमने पहले एमबीए करना है, 16 पॉइंट करने हैं, शादी करनी है 4 पॉइंट ये हो जाएंगे, फिर तुमने ये करना है, फिर कंसल्टेंट गुलशन में बैठा हुआ है, गुलशन चौरंगी में, उसको तुमने इतने पैसे देने हैं, पीआर आएगा, ये प्लानिंग है ना स्टेप बाय स्टेप, ये मुझे इंडिया की और इसराइल की बता दे, कोई बता दे कि करना कैसे है। अबे यार फजूल की भड़कियां यार, 50 साल से सुन रहे हैं, अगले 50 साल भी यही चलता रहेगा। तो कलेक्टिव गोल नहीं है नेशन का, तो कलेक्टिव गोल नहीं है तो सब अपने इंडिविजुअल जिंदगी रहता है, मुल्क तो बेहतर करना नहीं, अपने आप को बेहतर करना है। अब अपने आप को बेहतर करने में मुझे उसामा को ट्रक के नीचे डालना पड़े, मुझे किसी और के साथ ज्यादती करनी पड़े, आई डोंट गिव अ शिट, क्योंकि मेरा गोल है जी बैरियर डाउन में घर, कनाडा की इमिग्रेशन और ये वो। तो इसलिए हमारे अंदर वो चूंकि इंडिविजुअलिज्म इतना भर गया है कि हम किसी का और का सोचते ही नहीं।
किसी और का मुल्क तो बहुत बाद में आता है, पड़ोसी का नहीं सोचते आप, गली का नहीं सोचते, गली में कचरा फेंक देते हैं भाई, गली का ही नहीं सोचते, मुल्क का क्या सोचेंगे। तो बस भड़कियां और नारे वारे करवा लो, काम आपको भी। तो आई एम सॉरी बेटा, यू हैव टू गो थ्रू दिस, and this is only a learning. You're only 21, and this was, I think, a learning curve. We've all been through this, so it's nothing new. Netflix, Huawei, Samsung, Khaleej Times, कहाँ आपने काम किया, sky is the limit. So I think you had downgraded yourself to work for this motherfucker, and the sky is the limit, man. And even sky is not the limit. Reach for the stars, and you'll do well in life. 15 से आप लगे हुए हो तो आप सही निकले हुए हो, बिल्कुल सही निकले हुए हो। ये 21 वाली गलती लोग 28 में करते हैं, तो आपने 21 में ही कर ली। अब आप ये जिंदगी भर नहीं करोगे। लोग 28-30 में आके जब एक जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इस तरह का बॉस पाल लेते, फिर कहते हैं यार ये क्या कर लिया, फिर वहां से निकलना काम होता है, तो वो जिंदगी में बहुत पीछे हो जाते हैं। क्योंकि आप जितनी जल्दी गलती कर रहे हैं ना, उतनी जल्दी सीख के एक्सेलरेट कर रहे हैं। जितनी लेट जिंदगी में गलती हो रही है, वो आपको बहुत स्लो कर रही है। ये टाइमलाइन को समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए आपकी। ये जितनी जल्दी मिस्टेक हो जाएगी, जल्दी पैरों पे खड़े होंगे। जवान आदमी फौरन खड़ा होता है ना, बूढ़ा आदमी देर से खड़ा होता है, ऐसे ही भाई। तो जो गलतियां आप 21 में कर ले, गलती तो करनी है, सीखता ही ऐसे इंसान। दैट्स व्हाट एक्सपीरियंस इज। एक्सपीरियंस इज मेड ऑफ मिस्टेक्स। मिस्टेक तो तब होती है जब रिपीटेडली हो, वरना तो एक्सपीरियंस होता है। तो आई एम ग्लैड यू मेड दैट मिस्टेक इन लाइफ अर्ली ऑन, एंड इंशाल्लाह आप आइंदा दोबारा कभी भी नहीं करेंगे, और ऐसा को दूर ही रखें और खल्ली वल्ली करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस एपिसोड। इसको यहीं पे रैप अप करते हैं। मेरी भी आवाज अजीब हो रही है, उसामा को भी छींके लगी हुई है, आधा कराची बीमार है, अल्लाह सबको शिफा दे। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड फॉर सपोर्ट यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag। फेसबुक पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। इजी पैसा जैज मैंने अभी तक सिम नहीं ली, तो वो अभी तक नहीं आया है, शायद इसमें आ गया हो, तो अगर लिखा हुआ नजर आ रहा है तो उस पर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है।